Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your biology class. We have started our second chapter of biology of first year, that is the biological molecules. Last time, means yesterday, we did the introduction of this chapter and we studied about the biochemistry. Today we will start and we will discuss the importance of carbon in the living organisms. Carbon is a very important element. This is the basic element of organic compounds because it has a very unique properties which are not present in other elements, and these unique properties are suitable to make the protoplasm and to make the आप कह सकते हो skeleton of the life. So this carbon element has the central position in the skeleton of the life. If we discuss the important properties, the first important property of carbon is that it is tetravalent. Look at the diagram. This is the carbon atom. This is the nucleus, and you can see it has four electrons in the outermost shell. The first shell is the K shell and the second shell is the L shell. In K shell it has 2 electrons, and in the L shell, which is the outermost shell of the carbon atom, has 4 electrons. Because of the presence of the 4 electrons in the outermost shell, we call it as a tetravalent. Its valency is 4. So this is known as the tetravalent element. ये इसका atomic mass है 12, and this is the atomic number of the carbon. Tetravalent means that it has the ability to form 4 covalent bonds with other atoms or radicals. So this is a tetravalent element. The carbon atom forms covalent bond with other elements. What is a covalent bond? Covalent bond is a bond that is formed because of the sharing of electrons. Means that 2 atoms combine together and they fill their outermost shell by the sharing of electrons. If 2 pairs of electrons are shared between 2 atoms, then the bond will be the double bond. If one pair of electron is shared between 2 atoms, the bond is the single covalent bond. And if 3 pairs of electrons are shared between 2 atoms, the bond will be the triple bond. This you have studied in your chemistry of the 9th class. So the carbon atom has the ability to form 4 covalent bonds with other elements. When this carbon atom form the bonds with the atoms or radicals, this carbon atom and the bonded elements are arranged in the environment in a symmetrical structure, and that symmetrical structure is known as the tetrahedron structure. Mean कि जब कार्बन बॉन्ड बनाता है विद अदर एलिमेंट्स, अदर 4 एलिमेंट्स, तो ये 4 एलिमेंट्स और जो कार्बन है that is arranged in the environment in the form of a tetrahedron. Look at this diagram. This is a central carbon atom, and for example carbon form a bond with the other elements, and that element is the hydrogen element. So कार्बन ने 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये देखें बॉन्ड बनाया. This is a single covalent bond. This is also a single covalent bond. This is single covalent bond, and this is single covalent bond. These hydrogen atoms are bonded with the carbon atom with the specific angle. यहाँ पर एक ख़ास specific angle होगा जिसके साथ ये जो elements हैं ये कार्बन के साथ bonded होते हैं. Now these 4 hydrogen atoms and the carbon atom form a symmetrical shape. ये एक ख़ास पैटर्न के साथ एनवायरनमेंट में अरेंज होते हैं. इनका एक ख़ास एंगल होता है विच इज़ अ कांस्टेंट एंगल. ये जो शेप बनती है, दिस शेप, दिस इज़ नोन एज द टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर. ये पीछे से भी कार्बन के साथ इसका ये दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर. बिकॉज ऑफ द टेट्रावेलेंसी and because of this tetrahedron structure, the carbon atom has a very stable configuration.
इसके रिजल्ट में जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, जो भी स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट हैज़ अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस स्टेबिलिटी दैट इज़ इम्पार्टेड बिकॉज ऑफ दिस टेट्रावेलेंसी टू द कार्बन एटम मेक इट अ फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स। मीन्स कि जो कार्बन एटम अदर 4 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है और टेट्राहेड्रॉन का जो स्ट्रक्चर उसको डेवलप होता है, दैट इज़ अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी ये जो कार्बन एटम है, दिस इज़ अ वेरी सूटेबल एलिमेंट टू फॉर्म द कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स। जो सेल के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जो मेम्ब्रेन है या अदर ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी फॉर्मेशन में ये कार्बन जो एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दिस इज़ वेरी सूटेबल एंड फेवरेबल एलिमेंट। नाउ कार्बन जो है दैट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये कार्बन एटम जो है ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। हम उन कॉम्बिनेशंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन कैन कंबाइन विद अदर कार्बन एलिमेंट, यानी कार्बन के साथ लिंक करके तो आप कह सकते हो कि बिग साइज़ कंपाउंड जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। आपने 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन। अच्छा, जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। अब ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, दीज कंपाउंड्स कैन बी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, दीज कंपाउंड्स कैन बी ब्रांच चेन कंपाउंड्स, और दीज कैन बी रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड भी हो सकते हैं ये। लाइक दिस, लुक एट दिस, here you can see that this one is a straight chain compound, यहाँ पर कोई branch exist नहीं करती है। This is a branched chain compound and this is a cyclic alkane, यहाँ हम इसे कहते हैं this is a ring structure. When we see that if carbon combine with other carbon atom and there is no side chain, this is a straight chain. These are known as the straight chain compounds. अच्छा, यहाँ हमने क्या करना होता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है हमेशा। यहाँ अगर कार्बन स्ट्रेट चेन है तो रिमेनिंग जो होंगे ये हम एज्यूम करते हैं हमेशा कि ये जो अदर 4 बॉन्ड्स जो की जो फॉर्मेशन हो रही है, इसमें हाइड्रोजन इज़ कंबाइंड हेयर, like this. Always satisfy the tetravalency of the carbon atom. Here is also the hydrogen. So we have to always satisfy the tetravalency. This is the straight chain compound. ठीक है, अच्छा ये वाला हो गया जो this one. Now next is the branched chain alkane. Branch chain में क्या होता है कि कार्बन is combining with other carbon atom, straight chain है, but there is also a side chain कि हर कार्बन एक तरफ से एक कार्बन और दूसरी तरफ से वही कार्बन एटम जो है वो किसी और कार्बन एलिमेंट के साथ भी अटैच हुआ है। तो ये क्या है, ये चेन बन रही हैं इनकी, यहाँ भी ऐसे कार्बन हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ चेन, आप कह सकते हो ये ब्रांच्ड चेन है उसकी कार्बन के कंपाउंड्स की। अगेन वी विल सेटिस्फाई द टेट्रावेलेंसी ऑफ एवरी कार्बन एटम। हमें हर कार्बन एटम की टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है, और यहाँ पर अंडरस्टूड है कि हियर इज़ हाइड्रोजन एटम। इफ़ देयर इज़ एनी अदर एटम प्रेजेंट, एनी अदर एलिमेंट प्रेजेंट, तो उसको लिखा जाता है, स्पेशली उसको मेंशन किया जाता है। इफ़ दैट इज़ नॉट मेंशन्ड तो दिस इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ही इसके साथ अटैच है। सो दिस इज़ द ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये ब्रांच्ड चेन कार्बन का कंपाउंड है। नेक्स्ट कम द रिंग स्ट्रक्चर। सम टाइम इफ़ वी लुक एट दिस चेन, ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि द फर्स्ट कार्बन एंड द लास्ट कार्बन दे फॉर्म बॉन्ड
with each other. And as a result of this, a cyclic structure is formed. Look at this. This cyclic compound is formed. This is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And this 6 carbon atom has formed the bond with the carbon number 1 here like this. So उस तरीके से क्या हुआ, रिंग स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन होगी. उसको कंप्लीट करने के लिए हम कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे. ये देखें लाइक दिस. तो ये कार्बन की 4 वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो जाएंगी. By these examples, this is clear that carbon can form bond with other carbon atoms, and as a result of this, a variety of organic compounds are produced. These organic compounds can be straight chain compounds, can be branched chain compounds, or these can be cyclic hydrocarbons. But these are very much important and they play a very important role in the skeleton of the living organisms. Carbon atom can combine with other elements also. अदर एलिमेंट्स अब कौन से, जैसे अदर एलिमेंट्स हो जाएंगे जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, phosphorus and sulfur. These are the most common elements by which carbon atom is combined. जो कार्बन है वो बॉन्ड बनाता है इनके साथ. हाइड्रोजन तो जो भी आप चेन बना रहे हैं, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है या रिंग स्ट्रक्चर है, जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो रिमेनिंग बॉन्ड्स जो हैं वो हाइड्रोजन एटम के साथ वो बनाता है. इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी, फॉस्फोरस के साथ भी और सल्फर के साथ भी. आप इसको याद करने के लिए दिस इज़ NPS. ठीक है, आप NPS के हिसाब से इसको याद करें और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हो गया कि इन्होंने बॉन्ड बनाना है. नो कार्बन कैन कंबाइन विद कार्बन एंड कार्बन and that process is known as the catenation. And number 2, carbon can form bond with hydrogen also, and this carbon hydrogen bond is very much important bond because this bond is the potential source of energy. थोड़ा सा रिकॉल करें, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें हम पढ़ते हैं कि द बॉन्ड दैट इज़ प्रेजेंट, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज़ प्रेजेंट इन द फूड, this bond is broken down as a result of cellular respiration and huge amount of energy is released. Mean कि जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है that play a very important role in living organism and this is the potential source of energy for the living organisms. इसी बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है and that energy is utilized by the living organisms to perform their vital activities. So carbon hydrogen bond is very important bond in living organism and this serve as a potential source of energy. Third type of bond is carbon hydrogen bond. Carbon can form bond with oxygen and this bond is present in the glycosidic linkage. What is this glycosidic linkage? This we will study in carbohydrates. This is a molecule of glucose. This is an other molecule of glucose and these glucose molecules are combined together with a bond and that bond is known as the glycosidic bond. अगर हम इस बॉन्ड की डिटेल में देखें तो ग्लूकोज नंबर 1 मॉलिक्यूल एंड ग्लूकोज नंबर 2, ये ग्लूकोज का एक कार्बन एटम दूसरे ग्लूकोज के कार्बन एटम के साथ कंबाइन होता है थ्रू ऑक्सीजन. सो ये जो बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं दिस इज़ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड इन दिस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. सो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दिस इज एसोसिएटेड इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स. यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है इन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस बॉन्ड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. थर्ड टाइप ऑफ लिंकेज इज कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड.
कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये प्रोटीन के अंदर ये बॉन्ड होता है और हम इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सो जो कार्बन है दैट कंबाइन विद नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड लिंकेजेस, और इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को बनाने में ये बॉन्ड रोल प्ले करता है, ठीक है। इफ़ दिस इज़ वन अमाइनो एसिड, this is second amino acid, this is third amino acid, this is fourth amino acid, and so on. This linkage is the peptide bond, and in this linkage there is a bond between carbon and nitrogen. So carbon nitrogen bond is present between two amino acids through a linkage that is known as the peptide bond, and this bond is very much important for the formation of the complex protein molecules, and these protein molecules have a very important role in the living organisms. ये protein का structural role भी होता है living organisms में, and they have the functional role also in the living organism. So we have studied that carbon can form bond, कोवलेंट बॉन्ड विद वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम उनकी वैरायटी को, डिफरेंट बॉन्डिंग को देखें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमने देखा कि कार्बन कैन फॉर्म द बॉन्ड विद द हाइड्रोजन, कार्बन कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन, एंड कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद द नाइट्रोजन। नो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बॉन्डिंग, ये जो कार्बन डिफरेंट वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, ये रेडिकल्स के साथ कंबाइन करता है, रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड. These organic molecules can be classified into two major groups. And what are these two major groups? Number one is the macromolecules and the second one is the micromolecules. Macro होता है large, big, ठीक है, और micro होता है small. So macromolecules are those molecules which have high molecular weight. यानी ये बिग साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका मोलेकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस आर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स एंड दे हैव लेस मॉलिकुलर वेट, इनका मॉलिकुलर मास जो है ये कम होता है। द एग्जांपल्स ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर सेलुलोज, फैट एंड प्रोटीन्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स इज़ दैट दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी ये पानी में हल नहीं हो सकते. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी की वजह से मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल. ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, मीन सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, या डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो हैं बॉडी सेल के अंदर, उनकी फॉर्मेशन में ये मैक्रोमोलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं बिकॉज दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर. इमेजिन अगर ये जो सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, अगर ये उन कंपाउंड से मिलकर बने हों विच आर सॉल्युबल इन वाटर, तो फिर तो सेल की स्टेबिलिटी ही नहीं हो सकेगी. सेल के वो स्ट्रक्चर्स सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे और सेल एज अ होल डिज़ोल्व हो जाएगा. तो जो सेल अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता है, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, वो किस लिए? क्योंकि सेल के स्ट्रक्चर के बनने में जो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसी वजह से जो सेल का शेप है, जो सेल का स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन रहता है. So these macromolecules are used by the cell to form different cellular structures. And the second important use of these macromolecules is this, that they are used as the storage of small molecules. जैसे photosynthesis हुई, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना, and that glucose is used by the plant to perform its activity. अब जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो उस प्लांट ने स्टोर करनी है अपने अंदर, ठीक है. ये सेल है प्लांट का, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और उसके रिजल्ट में ग्लूकोज प्रोड्यूस हुई. अब ग्लूकोज क्योंकि सॉल्युबल होती है, ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म को बना देगी हाइपरटोनिक.
अच्छा, अब ये ग्लूकोज साथ साथ यूटिलाइज हो जा रही है, प्लांट सेल इसको यूटिलाइज कर रहा है। नो दिस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो बच जाएगी यहाँ पर, क्योंकि वो ग्लूकोज आप कह सकते हो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है। द एक्सेसिव अमाउंट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ये स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट होकर तो ये सेल के अंदर स्टोर हो जाती है। अब स्टार्च बिकॉज दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये सेल की टॉनिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करती, यानी जितनी मर्जी अमाउंट में स्टार्च प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगी, ये सेल की टॉनिसिटी को, उसके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करती। थोड़ा सा रिकॉल करें कि अगर सॉल्यूशन जो सेल के अंदर प्रेजेंट है दैट इज़ हाइपरटॉनिक, तो फिर क्या होता है कि बाहर की एनवायरनमेंट में से जो वाटर है वो एंडोस्मोसिस के ज़रिए सेल के अंदर एंटर होना शुरू कर देगा। और अगर सेल का अंदर का जो एनवायरनमेंट है दैट मीन्स कि उसका जो साइटोप्लाज्म है दैट इज़ हाइपोटोनिक, यानी उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो सेल के अंदर से वाटर जो है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में मूव करना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। अब अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को सेल के अंदर स्टोर करना है तो इट्स मीन कि ग्लूकोज अगर सेल के अंदर ज़्यादा है एंड बिकॉज ग्लूकोज इज़ सॉल्युबल, तो सेल का साइटोप्लाज्म बिकम हाइपरटोनिक, और अगर वो हाइपरटोनिक हो गया तो एनवायरनमेंट में से वाटर जो है वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और सेल बर्स्ट कर सकता है बिकॉज दिस इज़ या इसकी ज़्यादा टर्जिड हो जाएगा, ठीक है, वो सेल की टॉनिसिटी को डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन अगर यही ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट के अंदर स्टोर किया जाए तो ये स्टार्च जो है वो सेल की टॉनिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि दिस इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आप एक बीकर लें और उसके अंदर नमक को डिज़ोल्व करें, सॉल्ट को, तो क्या हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अगर हम उतने ही चम्मच एक बीकर के अंदर सैंड की डाल दें, रेत की डाल दें, तो वो हम ये नहीं कहेंगे कि ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया, बिकॉज सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हम जितनी मर्जी सैंड वाटर के अंदर ऐड कर दें, वाटर जो है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर सॉल्ट को ऐड करेंगे या हम शुगर को ऐड करेंगे, तब हम कहते हैं कि येस दिस इज़ द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और दिस इज़ द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर। सो जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, these are used to store the small molecules in the cells. So macromolecules के दो major use हो गए। नंबर वन क्या कि these are used to make the cell structures and second these are used to store the small molecules in the cells. Now come towards the micromolecules. Micromolecules क्या हैं? These are small sized molecules which has a small molecular weight. Example इसकी क्या है? Glucose, amino acids and fatty acids etc. ठीक है, now these are small molecules and these serve as a source of energy. जब ये इनकी breakdown होती है as a result of cellular respiration, तो एनर्जी रिलीज़ होती है एंड दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू परफॉर्म इट्स वाइटल एक्टिविटी. सो दीज माइक्रोमोलिक्यूल्स सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. The second use is that these small molecules serve as the building blocks. मीन्स कि ये सब यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं टू बिल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स. जिस तरह एक ब्रिक है वो पूरी वॉल को और पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, इस तरीके से ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दिस आर यूज्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, these are used as the subunits to build macromolecules. जैसे ग्लूकोज से सेलुलोज बनेगा या ग्लूकोज से स्टार्च बनेंगी या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज मोनोमर्स मिलते हैं, कंबाइन करते हैं और बहुत सारे ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं वो मिलकर तो लार्ज साइज मैक्रोमोलिक्यूल जो बनाते हैं. इस तरीके से अमाइनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तो दे मेक द पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड दीज पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. फैटी एसिड्स हैं जैसे ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, दिस कैन कंबाइन विद ग्लिसरॉल और एनी अदर कंपाउंड टू फॉर्म द लिपिड मॉलिक्यूल्स. सो माइक्रोमोलिक्यूल्स सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, अब कुछ ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं विच आर वेरी मच अनस्टेबल,
यानी कि वो जो ही बनते हैं वो फ़ौरन किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि दीज आर अनस्टेबल एंड दीज आर इमीडिएटली ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज़ ATP। आपने ये 9th क्लास में पढ़ी है। ATP को हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम कहते हैं दिस इज़ द रेडी टू यूज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडी टू यूज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही वो फॉर्म है जिसको कि सेल यूटिलाइज कर सकता है अपनी एनर्जी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। सो सच जो सब्सटेंसेस होते हैं ये सर्व करते हैं एज एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? टुडे वी स्टडीड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन। हमने देखा कि कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट है, ये टेट्रावैलेंट होता है और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद अदर एलिमेंट्स। और जब ये बॉन्ड बनाता है विद अदर एलिमेंट्स तो ये जो सिमेट्रिकल इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, this one, and this tetrahedron structure imparts stability to the carbon compound, and this stable जो stability है इसी property की वजह से जो कार्बन है this is a very important, या हम कहते हैं इसका central role है in the skeleton of the life। अच्छा, अब कार्बन जो है वो कंबाइन करता है विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटिनेशन, और इसके ज़रिए स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन या रिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है, बॉन्ड बनाता है, एंड दिस बॉन्ड इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बन कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एंड दिस इज़ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड दिस इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द कार्बोहाइड्रेट। Carbon nitrogen bond is present in the peptide bond, and this is used in the formation of the protein molecules. As a result of all these combinations, different variety of molecules are formed. Some are macromolecules, some are micromolecules. Macromolecule में cellulose, fat और protein शामिल हैं, और ये जो हैं because these are insoluble in water, so they serve as the molecules for the formation of cell structure and also for the storage of small molecules. Micromolecules are small molecules, example इनकी glucose, amino acid, fatty acid वगैरह हो गए, and these are used as a source of energy, and these are used as a building blocks for the formation of the मैक्रोमोलिक्यूल्स को उनको बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और कुछ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक ATP, these are very much unstable and these are used as a source of energy. Sufficient for today. Inshallah tomorrow we will discuss the importance of water. आप इस टॉपिक को ज़रूर बुक में से रीड कीजिएगा, and if you have any question you can ask me freely. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़.